Okay, now I started. Because even if at all they miss the class, if they're missing the class, let them watch this video. Okay. So last Yes, class, ma'am. Yes, already ma'am. we have started with the second chapter. That is different Yes, forms of ma'am. business organizations. That is Yes, forms ma'am. of business organization. And as all we Yes, know, there ma'am. are different forms of business organization. The first one is sole Yes, ma'am. proprietorship. We understood what is sole proprietor. Sole means one person. So we understood what is sole Yes, ma'am. proprietorship. What are the features of Yes, sole ma'am. proprietorship? The merits of sole Yes, ma'am. proprietorship and the demerits of sole proprietorship. So we were Yes, very ma'am. clear. Are you all clear with that concept of sole proprietorship, the features and advantages and Yes, ma'am. disadvantages? Yes, ma'am. Okay, very Yes, good, very ma'am. nice. Now, moving further to the second one. The second type of business organization we studied was, which was the second one? Hindu undivided Ma'am, family. into joint family Ah, business. so Hindu joint family business. So we understood this is in India. Ma'am. Now it is almost gone, finished. Very rare we find Yes, ma'am. Hindu undivided joint family Yes, ma'am. business. That is HUF, what we call it Yes, as. ma'am. So we understood what is Yes, ma'am. HUF, who is the head of the family, what Yes, he is ma'am. called, and the other members, whatever is their share, they are called as co-partners, and it was established Yes, according to ma'am. Hindu Succession Act. Correct? All those things we Yes, understood. What ma'am. are the features of Hindu Yes, ma'am. undivided family? Yes, ma'am. What are the advantages of Hindu undivided family? What are the disadvantages of Hindu undivided Yes, ma'am. family? These all things, is it clear? Yes, ma'am. Then we Yes, moved ma'am. on to Yes, the ma'am. third type of business organization, that is partnership. So we understood what is Yes, ma'am. partnership, where there are more than two members. It's not a partnership cannot be done with one Yes, member. ma'am. Partnership is more than two members, minimum two, maximum 50. What has been given? It is according to Indian Partnership Act 1932. Yes, So ma'am. it is as per that Yes, we ma'am. have understood what is partnership, features of partnership, advantages and disadvantages of partnership. We understood. Plus we understood the different types of partners. Clear? So different types of partners were Yes, ma'am. first was Yes. what type of partner? First one is first person is, that is active partner. Second is sleeping partner or dormant Yes, ma'am. partner. Third is secret partner. Fourth is nominal partner. Fifth is partner by estoppel, and the last one is partner by holding out. So these are the different types of Yes, ma'am. partners we understood. That was what we studied in the last class, and we had stopped it here. By the Yes, ma'am. time we got a Yes, ma'am. vacation, we had a vacation of a Yes, week. Now we'll go to the different Yes, types of partnership. We were supposed to understand different types of partnership. Now this partnership is based on two things. Classification of partnership. So classification of partnership is done in two categories. One is classification of partnership on the basis of duration. Yes, ma'am. Classification, that is partnership on the basis of duration. Duration. Yes, ma'am. ड्यूरेशन का मतलब क्या है? Ma'am, time. हाँ, on Ma'am, the time. basis, yes, very good, on the basis of duration. ठीक है, ये एक टाइप का है. इसमें in this you have got two types of partnership. So Yes, classification of partnership is done on the basis of duration, that is time period. So first is Yes, ma'am. the first type of partnership at will. Partnership at Will. will. Okay, we will understand this. And second type of partnership is particular partnership. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, particular partnership. Okay, so we'll understand. Now you understood classification of partnership is done on the basis of duration. So time के मुताबिक classification होता है. Yes, तो पहला type is partnership at will, and the दूसरा वाला is partnership, Yes. that is particular partnership. Now what is particular? That is partnership at will. So partnership at will is what? It is nothing but this type of partnership exists at the will. Will means क्या? Will का मतलब क्या? मर्जी से. What it is called as per your wish. अपना Yes, will ma'am. of the Yes, partner. ma'am. जिस भी पार्टनर की जो भी मर्जी है उस हिसाब से पार्टनरशिप चलता है. सो इट इज एज पर हिज विल. इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स ma'am. वांट. इसकी मर्जी, जब तक वो चाहता है, Yes, जिस ma'am. जो भी पार्टनर चाहता है उस हिसाब से चलेगा. इट विल एग्जिस्ट अंटिल द will or wish of the partner. It will exist or will live or survive for a time until the partner wants it.
एंड इज टर्मिनेटेड, जब तक वो पार्टनर चाहेगा तब तक पार्टनरशिप चलेगी उसकी मर्जी के हिसाब से। अगर वो उसको टर्मिनेट करता है, खत्म करना है, तो वो खत्म होता है। तो इसलिए इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट will. So it will be whether a partnership wants to give. Now when any partner wants to give a notice of withdrawal from the partnership of the firm, he can end it. अगर किसी को अगर कंटिन्यू नहीं करना है, अगर उसको खत्म करना है, तो उसको एक नोटिस देना पड़ता है कि बाबा इसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। सो एनी पार्टनर गिव्स, व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर गिव्स अ नोटिस ऑफ हिज टर्मिनेशन फ्रॉम द पार्टनरशिप और withdrawal from the partnership, it will end. So it is based on what? Yes, ma'am. On the will or wish of the Will. partner. जब तक वो चाहे कंटिन्यू कर सकता है या उसको टर्मिनेट या विड्रॉ कर सकता है, उसको पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Jagdish, there or no? Small sound I heard. Jagdish, it is, I think. Yes, ma'am. Yeah, very good. So next is particular. Particular का मतलब क्या है? Particular on the specific Ma'am, at time. the fixed हाँ, time. अभी जैसे हाँ पर्टिकुलरली अभी आई वांट टू कंटिन्यू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने 6 महीने के लिए, 1 महीने, पर्टिकुलर स्पेसिफाइड मैं ये पार्टनरशिप कर रही हूँ, पार्टनरशिप बिजनेस कर रही हूँ, या कोई भी एक पार्टनरशिप में बिल्डिंग बांध रही हूँ, या पार्टनरशिप में कुछ कर रही हूँ, कितने देर के लिए? जब तक कि वो जो भी काम है उसको दैट पर्पज इज फिनिश, तब तक के लिए। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೆ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ? विल दैट पार्टनरशिप कंटिन्यू इवन आफ्टर द Yes, बिल्डिंग इज ma'am. फिनिश्ड? बिल्डिंग कर अभी मैं और No. 4 लोग मिलके एक पार्टनरशिप में एक बिल्डिंग No, बांधने ma'am. के लिए ले लिया, वो बिल्डिंग मेरे खत्म हो गया, उसके बाद भी मेरा पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगा क्या? No, ma'am. नहीं, क्योंकि No, वो ma'am. पर्टिकुलरली दैट पार्टनरशिप वाज मेंट ओनली फॉर दैट पर्पस। किस लिए था? वो बिल्डिंग बनाने के लिए ही पार्टनरशिप था। तो वो पर्पस जिसके लिए हमने पार्टनरशिप किया था, वो पर्पस खत्म हो गया, then automatically the partnership ceases. Ceases means partnership comes to an end. समझ में आया? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. Yes, particular ma'am. means उस जिस काम के लिए भी मैं पार्टनरशिप में एंटर की हूँ, वो उस पर्पस के लिए ही था, और वो पर्पस जब खत्म हो जाता है तो मेरा पार्टनरशिप एंड होता है। सो पर्टिकुलर Yes, ma'am. पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट मीन्स क्या? फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। कोई एक प्रोजेक्ट करने के लिए, मैंने एक ब्रिज बनाने के लिए पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस एंटर किया, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई रोड बनाने के लिए, कोई भी वॉट एवर बिजनेस आई एम एंटरिंग इनटू फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और एनी एक्टिविटी टू बी कैरिड आउट। जो भी काम के लिए मैंने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या एनी कंस्ट्रक्शन किसी के भी लिए भी किया है, जब दैट पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम, अगर मैं सिर्फ 6 महीने के लिए अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए हूँ टू डू अ बिजनेस, if that particular time, that specified purpose, that specified work is accomplished, so naturally automatically the partnership dissolves. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. It is called as particular partnership. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हो गया एक टाइप Yes, का ma'am. क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ये हो गया। Yes, अभी दूसरा टाइप, Yes, ma'am. yes, second type. So classification of partnership on the basis of liability. Liability का मतलब क्या yes, है? ma'am. Ma'am, On the basis of liability. liabilities. हाँ, तुम अभी अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हो ना? एसेट एंड लायबिलिटी, लायबिलिटीज Yes. खर्चा, तुम पर कितना बोझा है, तुम पर कितना कर्जा है, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑन यू? Yes, सो ma'am. ये एक पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ठीक है? तो उस पर Yes. निर्धारित है। सो वन टाइप वाज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, दूसरा बेसिस ऑफ ड्यूरेशन इज टाइम के हिसाब से, अभी ये डेथ के हिसाब से, वट एवर इज द लायबिलिटी ऑन यू एज पर दैट। सो इन दिस ऑल्सो देर आर 2 टाइप, ठीक है? वन इज जनरल पार्टनरशिप and second is that is limited partnership. Yes, ma'am. These are the 2 types of partnership on the basis of liability, ठीक है? अभी देखो liability के basis पर Ma'am. 2 है, एक general partnership, second is limited partnership. Now general partnership is
द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, इसमें पार्टनर्स के लायबिलिटी कैसा होता है? इट इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट. अभी जनरल मीन्स जितने भी पार्टनर्स है, एक तो हो ही नहीं सकता पार्टनरशिप, एक से ज्यादा होना चाहिए, 2, 4, 10, 15, 20 जितने भी पार्टनर्स है, उनकी लायबिलिटी कितनी होती है इसमें? इट इज अनलिमिटेड. जो भी Unlimited, नुकसान होने दो, जो भी नुकसान होने दो, जितना भी होने दो, सबको बराबर है, सबको अनलिमिटेड, हर किसी का ऊपर बोझ एक जैसा आएगा. इट इज जनरल. व्हाट इट Yes, सेज? ma'am. इट इज जनरल. द लायबिलिटी, व्हाटएवर General. लॉस दे विल फेस, व्हाटएवर जो भी नुकसान होगा, जो भी कर्जा होगा, सब कुछ जनरल होगा, अनलिमिटेड एंड जॉइंट. इसमें ये नहीं, कोई Yes, नहीं ma'am. बोलेगा अरे मैं तो था नहीं इसलिए मेरे ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ तुम लोग थे, तुम्हारा नहीं. एवरीबडी जो था नहीं था, जो भी है, जितने भी पार्टनर्स है, सबको एक जैसा, जॉइंटली एंड अनलिमिटेड. अगर कल को तुम्हारा बिजनेस में का एसेट्स बेच के भी अगर आपका कर्जा भर नहीं सके, तो तुम्हारा अपना पर्सनल प्रॉपर्टी जो होगा ना, जितने भी पार्टनर्स, सब लोगों को अपने प्रॉपर्टी में से Excellent. बेच के भी देना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज जनरल Yes, ma'am. partnership. That is liability limited. That is it is liability is unlimited. यहाँ पर liability कैसे होते हैं जनरल पार्टनरशिप में? क्योंकि एक जैसा है सबके लिए. पार्टनरशिप इज जनरल, दैट्स व्हाई द liability is how it is unlimited and joint. यहाँ पर ये कोई नहीं बोल सकता है मैं उसमें नहीं हूँ, तुम्हारा इतना ही है, मेरा इतना नहीं है. नो, इट इज जॉइंट एंड अनलिमिटेड. हर किसी के ऊपर एक जैसा पड़ेगा लायबिलिटी, एंड इट इज अनलिमिटेड. नहीं 10% मैं है, तू 50% भरना है, ऐसे कुछ नहीं है. अगर सबको 10% है तो सबको 10%, जितना भी लॉस है सबने एक जैसे भरना है. Ma'am. Liability is same on everybody. So the partners, as they enjoy all the rights, particular participating in the management of the firm, it is binding. जैसे फायदा एक जैसे के साथ मिल के बांटते हो, वैसे नुकसान भी सब लोगों ने मिल के बांटना है. और जितना भी है अनलिमिटेड है. तेरे लिए 10%, मेरा 20%, तेरा 30%, ऐसे कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड एक जैसा है, सबने भी पूरा जितना भी है भरना है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ना यहाँ पर लिमिटेड, ना यहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड आती है. सो लिमिटेड पार्टनरशिप मीन्स यहाँ पर लायबिलिटी इज लिमिटेड. लिमिटेड का मतलब क्या है? आजकल बिजनेस यही फेमस है, जहाँ पर भी बड़े बड़े कंपनी चल रही है, public limited company, wherever these companies are running with a limited liability are more famous, because लिमिटेड का मतलब क्या है? मैंने जितना कैपिटल डाला है, मेरा लायबिलिटी उतने की ही. अगर समझो एक 5 पार्टनर्स है, समझो कितने? 5 पार्टनर्स है समझो, ठीक है? आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. हाँ, 5 पार्टनर्स Yes, है. ma'am. हाँ, और कैपिटल समझो इसमें 5 लाख रुपीस का है, ठीक है? 5 लाख रुपीस का कैपिटल है. अभी एक ए ने 2 लाख डाला, बी ने 2 लाख डाला, ठीक है? एंड 3 ने, सी ने Yes, ma'am. 1 लाख डाला, डी ने 1 लाख डाला, और ठीक है 2 4 नहीं ऐसे करेंगे 50 हजार, ठीक है? 50,000, 25,000, Yes, ma'am. 25,000, तो 5 लाख हो जाएगा ना. सो ए ने 2 लाख डाला है, Yes, बी ने ma'am. 2 लाख डाला है, 4 हो गए. सी ने 50,000 डाला, Yes, 4.5 हो गए. डी ने 25 और ई ने 25, 5 लोग हो गए. Yes, ma'am. देखो अभी 5 Yes, लाख की ma'am. कैपिटल है, किसने कितना कितना डाला? ए बी सी डी ई. 1 is 2 lakh, second is 2 lakh, third is 50,000, fourth is 25, fifth is 25. अभी लायबिलिटी कैसे बैठेगी इनकी? अगर कोई Yes, नुकसान ma'am. होता है कंपनी, तो उनकी लायबिलिटी कितनी होगी? अनलिमिटेड एंड जॉइंट होगा क्या? कैसे होगा? हाउ विल द बी लायबिलिटी? एज पर द इन्वेस्टमेंट. जिसका जितना पैसा डाला है उस प्रोपोर्शन से लायबिलिटी होगा. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हेलो, अगर 1 लाख रुपए का लॉस हो गया तो किसको ज्यादा पड़ेगा? ए एंड बी को, बिकॉज उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है. वट एवर is your investment, how much you have invested, the liability will be only to that extent of your capital what you have contributed. It will not be more on you. समझ में आ रहा है? जिसने जितना Yes, इन्वेस्टमेंट ma'am. किया है उस हिसाब से ही it will be dealt.
Now limited liability इसमें क्या होता है? So limited liability, it is least one of the partners is, whereas the rest have to be limited. Okay, यहाँ limited होता है, यहाँ पर अनलिमिटेड नहीं रहता. जिसका भी जितना इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से की उसकी लाइबिलिटी रहती है. एंड यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है? If here any of the partners, okay, any of the partners die because of death, retirement, insolvency, lunacy, will the partnership end? Will the partnership end? It does not get terminated. Here in this limited partnership, it doesn't get terminated. If somebody dies, anybody becomes mad or anybody is insolvent, whatever it is, the limited partners enjoy. Okay, partners do not enjoy the right of management and their acts are not bound on. So यहाँ पर क्या होता है? कोई भी एक आध बंदा गुजर जाने से, lunatic होने से या insolvent होने से, partnership will not come to an end. Okay, the person's legal heirs will be brought on record. So here the liability is limited, here it is unlimited. Particular, that is general partnership, liability is unlimited. It is unlimited and joint, but in limited partnership, it is not unlimited. Here it is limited. As per the investment, as per the capital that you have invested, the liability is run. Then now in India, limited liability partnerships are going on, whether it is companies also in India also after 1991, because of the new economic policies which have come up. The new economic policies which have come up after 91, this feature, that is limited liability feature, is very famous, a unique feature, because of which most of the companies, many people are running the business of limited liability partnerships. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Types of partnership. One is partnership on the basis of duration. In that we Duration. understood what is the first one? Particular and partnership at will and particular Partnership at partnership. will. And particular ma'am. partnership. Second is classification on the basis Yes, of liability. One is general partnership and second General is General Partnership and limited partnership and and limited. So in limited partnership. general the liability is unlimited and joint. Here it is limited. Okay. Yes, ma'am. Now we'll go to what is partnership Yes, ma'am. deed. अभी पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो उसके लिए एक डीड बनना पड़ता है ना? तुम लोग पार्टनरशिप कैसे Yes, करोगे? ma'am. उसके लिए एक कायदेशीर एक डीड बनना पड़ता है, पार्टनरशिप डीड. Okay, to do business, you have to have partnership deed. So, partnership is what? Is it a forceful association? Ma'am, your voice is not coming. Voice नहीं आ रहा है अभी? It is coming. Now you are getting? Can you hear me? Yes, ma'am. Your voice is coming. Now, partnership, is it a deed or partnership what you are doing, business? How it is? Does somebody force Your you voice to is do not business? coming. Does somebody force you to do business? No, ma'am. You are doing it with your own will, no? Partnership is a voluntary association. Voluntary means के खुद के volunteering means मैं अपने मर्जी से खुद होके ज्वाइन हो रही हूँ बिजनेस करने के लिए. I am becoming a partner with my own will and wish. तो उसको क्या बोलते हैं? Partnership is a voluntary association. Means मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैंने अपने मर्जी से पार्टनरशिप बिजनेस ज्वाइन किया. हु कम टुगेदर. पार्टनरशिप कौन आते हैं करते हैं? जिसकी मन मर्जी मिला हो, मन मिलते हैं, एक साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा बनता है, वो लोग इकट्ठा दे कम टुगेदर एंड दे अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. अभी 4-5 लोग हैं तो एक दूसरे के साथ उनकी अच्छी बनती है, तभी वो एक साथ आके बिजनेस करते हैं ना. सो नो. Yes, ma'am. और जिसका नहीं बनता किसी के साथ, वो लोग कभी Yes, देखा है कि ma'am. बिजनेस करते हैं? हैव यू सीन एनीबॉडी दोज हु कैन नॉट जेल टुगेदर? जिसके साथ मिलाप नहीं होता अच्छे से, एक दूसरे का व्यूज नहीं मिलते, वो कभी बिजनेस करते हो देखा है क्या? नहीं ना. No, ma'am. जिसकी अच्छी बनती है एक दूसरे के साथ, तो वो खुद के मर्जी से वॉलेंटरली एसोसिएट होते हैं. दे कम टुगेदर हैप्पीली एंड दे फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड
टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। क्यों किया? कुछ तो एक वजह है ना कि हम लोग बिजनेस करेंगे और No, ma'am. बड़ा बनाएंगे बिजनेस और हम लोग बहुत सारा फायदा बनाएंगे, ऐसे बोल के कोई तो एक ऑब्जेक्टिव रखते हुए करते हैं ना बिजनेस। सो इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, Yes, अगर आपको ma'am. पार्टनरशिप एंटर करना है देन यू हैव टू हैव अ क्लियर एग्रीमेंट। सो पार्टनरशिप करना है तो उसके लिए एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। व्हेन यू आर गोइंग टू डू बिजनेस यू हैव टू हैव अ एग्रीमेंट, है ना। तो एक Yes, दूसरे के ma'am. ऊपर भरोसा करने के लिए, कल को कुछ ज्यादा कम हो गया तो उसके लिए हम एक दूसरे के साथ या दूसरों के ऊपर भी कुछ केस करने के लिए कुछ तो हमारे पास एक प्रूफ वगैरह होना चाहिए ना, ऐसा नो। सो दैट Yes, इज द ma'am. रीजन इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप अ क्लियर एग्रीमेंट चाहिए। एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है विथ रिस्पेक्ट टू टर्म्स एंड। अभी क्या है, बिजनेस करने वाले हैं तो हम कितने लोग मिलके करेंगे? 5 लोग। अगर 5 लोग मिलके कर रहे हैं तो कितना कितना कैपिटल डालना है, तो वो सब एक एग्रीमेंट में आना चाहिए ना। एग्रीमेंट में पेपर में सब आना चाहिए ना कि हम 5 लोग मिलके कर रहे हैं, सो एंड सो डे हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मेरा हम 5 लोगों का इतना इतना कैपिटल होगा या कितना जो भी है, मैं ज्यादा डाल रहा हूँ तो मेरा परसेंटेज ज्यादा, तुम कम डाल रहे हो तो तुम्हारा कम, ऐसे सब टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए ना एग्रीमेंट में जो भी कर रहे हो। Yes, Yes or ma'am. no? So whatever you have Yes, ma'am. decided, everything should be coming in that agreement copy में terms and condition के साथ सब कुछ आना चाहिए। So that is very important. So आगे चल के हम 5 लोगों में किसी भी तरह का भेदभाव, मतभेद या मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना, कंफ्यूजन, डिस्प्यूट नहीं होना, इसलिए एक एग्रीमेंट में सारा सब कुछ आना चाहिए उसमें। सो इवन समटाइम्स ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी, बट ज्यादातर रिटर्न में ही रहना अच्छा रहता है ना। ओरल में रहने से कोई मतलब नहीं रहता है, रिटर्न में ही रहना चाहिए। इवन दो इट इज नॉट एसेंशियल बट ऑलवेज इट इज एडवाइजेबल दैट देयर शुड बी रिटर्न एग्रीमेंट, लिखित एग्रीमेंट रहना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आगे चल के अब अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो इट शुड बी रिटर्न सो दैट इन फ्यूचर इफ यू हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट, अपने अपने में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या आप बिजनेस करें किसी और के साथ तो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आपको एक एविडेंस प्रूफ के तौर पर वो एग्रीमेंट बहुत हेल्पफुल होता है। कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आप जाते हो तो भी उधर ये एग्रीमेंट की बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए ज्यादातर रिटर्न में ही रखना या बनाना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। सो अभी मैं बताऊं आपको, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, अभी Yes, ma'am. वो जो रिटर्न एग्रीमेंट रहता है ना, उसमें क्या क्या आना चाहिए मैं बताती हूँ, ठीक है। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है ना पार्टनरशिप का, उसमें व्हाट ऑल आर द रिक्वायरमेंट्स, इसमें क्या क्या होना जरूरी है जब आप एक पार्टनरशिप एंटर करते हो, तो इट शुड बी रिटर्न एंड ऑल ऑफ देम, बिकॉज फर्दर इन फ्यूचर यू शुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम्स amongst you yourself or with anybody else you enter into a contract to do business also. It should not be a problem and it will be helpful as a evidence, as a proof for you in future. That's why it should be written में। तो उसमें what are the agreements that should be there in this partnership deed बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। So what all things should be there? तो पहला क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट जब करते हो तो वो पार्टनरशिप का आपका नेम ऑफ द फर्म होना चाहिए, ठीक है। नाम क्या हो, समझ में आ रहा है? वो पार्टनरशिप जो शुरू कर रहे हैं उसका नाम आना चाहिए, वो एग्रीमेंट में सब कुछ क्या क्या डिटेल्स होना चाहिए, जो भी आप लोग मिलके सोचते हो नाम, वो नाम आना चाहिए। सेकेंड, नंबर ऑफ, दैट इज किस तरह का बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन, किस तरह का बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या है, वो बिजनेस जो आप कर रहे हो कहाँ पर है, खड़े बाजार में है, मारुति गली में है, उद्यान बाग में है, जो भी। नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस कर रहे हो आप, स्मॉल स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस कर रहे हो, कपड़ों का बिजनेस कर रहे हो, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर किस तरह का बिजनेस में आप डील कर रहे हो, एंड लोकेशन और कहाँ पर है ये बिजनेस आपका, ये आना चाहिए। तीसरा, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, पता चला, ड्यूरेशन ऑफ Yes, बिजनेस ma'am. पढ़ा ना अभी। Yes, ma'am. अभी पार्टनरशिप किस किस तरह का होता है ना। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन मीन्स क्या वो एट विल है, जब मेरे को चाहिए मैं करूंगा, बाद में मुझे मर्जी नहीं है तो निकल जाऊंगा, या पर्टिकुलर, या वो ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस में जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा हूँ एक बिल्डिंग बनाने तक ही है,
हम 5 लोग मिलके कर रहे हैं, वी हैव टेकन समबडीज बिल्डिंग, एक बड़ा अपार्टमेंट बांधने के लिए लिया है, हम लोगों का पार्टनरशिप कितने तक का है, वो पार्टनरशिप इज ओनली टिल दैट अपार्टमेंट इज ओवर, वंस दैट अपार्टमेंट इज डन मेरा और तुम्हारा पार्टनरशिप खत्म। सो तीसरा, तो ये जो डीड आप बनाते हो ना पार्टनरशिप का, उसमें ये सारे डिटेल्स आना जरूरी है, नहीं तो आगे चल के अगर आपका और उनमें झगड़ा हो गया है तो कोर्ट में आप क्या बताओगे, कोर्ट पूछेगी कब तक के लिए था, क्या था, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ वो हम भूल गए लिखने के लिए, कैन यू से दैट? तो एवरी डिटेल हैज टू कम, अगर आगे चल के कोई प्रॉब्लम होता है तो दिस शुड बी वेरी क्लियर। सो नेम ऑफ दैट बिजनेस, आपका फर्म का किस तरह का बिजनेस कर रहे हो और कहाँ पर है आपका वो बिजनेस ऑफिस, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, क्या वो हमेशा के लिए कर रहे हो या 6 महीने के लिए कर रहे हो, या उसमें आपने लिखा है नहीं बाबा मेरा अगर मन मर्जी किया आगे चल के कि मुझे नहीं करना है, डिसकंटिन्यू करना है तो मैं कर सकूं, वैसे कोई क्लॉज है क्या उसमें? तो लाइक दैट ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। देन फोर्थ क्या आता है, ठीक है, फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर। अभी 5 पार्टनर्स है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर। अभी 5 लोग है तो क्या 5 लोग सारे एक जैसा ही पैसा डाल रहे हैं क्या? कभी कभी कोई ज्यादा डाल सकता है, कोई कम डाल सकता है, उस हिसाब से फायदा और नुकसान भी बांटा जाता है उनको, ठीक है? सुन रहे हो, आर यू हियरिंग मी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय, तो ये एग्रीमेंट में ये सारे डिटेल्स आना जरूरी है कि तुम्हारा कंपनी पार्टनरशिप का नाम क्या है, किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, कहाँ पर ऑफिस है, ड्यूरेशन बिजनेस का कितना है, इन्वेस्टमेंट हर कोई, तो उसमें लिखना पड़ता है ए हैज इन्वेस्टमेंट 1 लाख, बी हैज इन्वेस्टेड 1 लाख, सी हैज इन्वेस्टेड 1 लाख, डी हैज इन्वेस्टेड 50%, ई हैज, जितने भी है 4 पार्टनर्स है, जिसने भी कितना कितना पैसा डाला है वो भी आना चाहिए। देन distribution of profit and loss, so distribution of profit and loss, Yes, ma'am. ठीक है, तो आप लोग 5 लोग पार्टनर्स मिलके डिसाइड करना है कितना पैसा डालना है और उसमें से किसको कितना फायदा लेना है और किसका लॉस होता है तो किसने कितना बांटना है, ये सब आपके ये एग्रीमेंट में आना चाहिए, जरूरी है। सो यू विल अकॉर्डिंगली जितना आपने पैसा डाला है उतना प्रॉफिट वो ज्यादा लेगा, जिसका कम है वो कम लेगा, लॉस होगा तो बांटेगा भी वैसे, जिसका ज्यादा पैसा है उसको ज्यादा लॉस, जिसका कम है उसको कम लॉस। समझ में आया? Yes, ma'am. तो इन्वेस्टमेंट भी लिखना पड़ता है कितना डाल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी तुम Yes, लोगों में कितना ma'am. कितना डिसाइड किया है अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो इसमें से किस किस को अभी कितने पार्टनर्स हैं, किस किस को क्या क्या देना है, कितना सैलरी देना है, कौन कौन से पार्टनर ने कितने पैसे लेने हैं हर महीने के हिसाब से, क्योंकि हर कोई उधर अपना क्या मेहनत डाल रहा है ना बिजनेस में, तो कितना लेना Yes, है, ma'am. अगर विड्रॉ भी करना है कभी, अगर सर पर्सनल काम के लिए चाहिए तो भी पार्टनर्स ने, ऐसे नहीं होना है कि हम लोग पार्टनर्स हैं हम भी पैसा निकाल रहे हैं हम ही उड़ा रहे हैं, ऐसे भी नहीं होना है। तो इसलिए इसमें क्लॉज आना चाहिए कि पार्टनर्स अगर Yes, विड्रॉ भी ma'am. करते हैं तो किसने कितने लेने हैं या कितने नहीं लेने हैं, जो भी है वो सारे डिटेल्स यहाँ पर आना चाहिए। देन टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, सो अगर पार्टनर्स, टर्म्स गवर्निंग एडमिशन मीन्स किसी को भी एडमिट करना है, पार्टनर बोल के लेना है, तो किसी को अगर जोड़ना है उसमें तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होना है वो सब कुछ इसमें डालना चाहिए। अगर इसमें से कोई बाहर गया और दूसरे को अगर ले रहे, तो दूसरे को अगर ले रहे तो भी उसको एडमिट कर रहे तो उसका कंडीशंस क्या होंगे, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, वो भी उसमें लिखित होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अरे Yes, ma'am. हाँ, अगर समझो एक 5 पार्टनर्स है उसमें से बीच में एक निकल गया, उसकी जगह पर और किसी और को ले रहे, नया बना रहे एग्रीमेंट, दूसरे को अगर लेना चाहते हो तो तब उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होना चाहिए, या जो भी आप लोग 5 पार्टनर्स है तुम लोग जब एडमिट हो रहे हो तो तुम लोगों के लिए क्या क्या कंडीशंस लागू होते हैं वो सब कुछ उसमें लिखित होना चाहिए। सो एडमिट हो रहे हो, अगर Yes, ma'am. भर्ती हो रहे हो, रिटायर हो रहे हो, अगर कोई इसमें से निकल जाना चाहता है, हाँ, अगर रिटायर हो रहे हो तो भी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होना है, या किसी को एडमिट हो रहे हो तो भी कंडीशंस क्या है, रिटायर हो रहे हो मैं 5 साल के लिए
पार्टनर बनना चाहते हो, 5 साल के बाद मैं निकलना चाहता हूँ, तो उसका 5 साल हो गया, रिटायर हो रहा है। या एक्सपल्शन, एक्सपल्शन का मतलब क्या है? एक्सपल्शन के मतलब क्या है? यू आर रिमूविंग हिम आउट। अगर आपका टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अगर कोई काम नहीं कर रहा है, इफ इज उल्लंघन कर रहा है, इफ इज वायोलेटिंग एनी ऑफ दिस टर्म्स एंड कंडीशंस, होते हैं ना कभी कभी कोई Yes, पार्टनर ma'am. अपना टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने एग्री किया उस हिसाब से नहीं चल रहा है, अपना मर्जी का कुछ कर रहा है, तो अगर आपको लगता है नहीं नहीं इसको इसमें से निकाल देते हो, तो यू विल एक्सपेल हिम। सो इफ समबडी इज नॉट behaving according to or following any of the terms and conditions, if somebody is violating the terms and conditions, he can be expelled from the partnership. समझ में आ रहा है? Are you getting? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma, Jagdish, Yes, ma'am. Prajwal, Kritika. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. इसमें सब कुछ आना चाहिए। जब तुम एक बिजनेस करने के लिए 5 लोग मिलके आ रहे हो, तो अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करते हो, एक डीड बनाते हो कागज के ऊपर, है ना, तो उसमें ये सारे डिटेल्स आने हैं। कंपनी का नाम क्या है, किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, उसका ऑफिस कहाँ होगा, कितने दिन के लिए कर रहे हो बिजनेस, कितने साल के लिए कर रहे हो, कितना पैसा हर किसी ने डाल रहा है, एवरी पार्टनर कितना कितना पैसा डाल रहे हो, उसमें से हर पार्टनर को कितना प्रॉफिट आएगा, कितना लॉस हम लोग डिवाइड करेंगे, ये सारे पहले से ही होना चाहिए। कितने सैलरीज, जो जितना मेहनत डाल रहे हैं, किसको कितनी सैलरी देना है, पार्टनर्स में कौन कौन कितना विड्रॉ कर सकता है, या टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होना चाहिए। अगर हम एक पार्टनर बन रहे हो तो हम लोगों को क्या क्या लागू है, और हमारा टाइम होता है, रिटायर होने का टाइम होता है, तो हम रिटायर होने के लिए उसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। अगर किसी को अपना टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं फॉलो कर रहे तो उसको निकाल रहे हैं, तो उसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या, ये सब कुछ इसमें आना चाहिए, सब कुछ ना, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर इसमें ये सारी डिटेल्स अगर लिखित में नहीं होते हैं, तो एक दूसरे के साथ बहुत सारा डिस्प्यूट अराइज होता है। ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अब हर किसी पार्टनर ने कितना कितना पैसा डाला है, एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग, समबडी इज इन्वेस्टिंग 1 लाख, समबडी, तो मैंने जितना पैसा डाला उस पर मेरे को कितना ब्याज मिलेगा, बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड 1 लाख और 2 लाख, somebody is invested 50,000, so accordingly the interest on that investment is also given. So interest on that capital or interest on of the partner, so हर पार्टनर ने जितने पैसे डाला है उस पर कितना इंटरेस्ट हर किसी को मिलेगा, वो सब डिटेल्स भी तभी का तभी होना चाहिए। आगे चल के झगड़ा करने के बजाय पहले से होना, अरे तुमने 1 लाख डाला है या तुमने 2 लाख डाला है, तो 2 लाख के ऊपर कितना हिसाब बनता है तुम्हारा, तो उतना तुम्हारा इंटरेस्ट उस पर बनता है। तो तुम्हारा अगर 50,000 ही है सिर्फ, तो उसको 50,000 के साथ, so like that as per the capital what is the interest on that capital is also to be decided first only. Then procedure for dissolution. डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मीन्स अगर आपको डिसॉल्व करना है, अगर इस पार्टनरशिप को खत्म करना है, उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। तुम लोग अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हो, आगे चल के आप लोग सब पढ़ोगे, रिटायरमेंट क्या है, अमालगमेशन क्या है, डिसोल्यूशन क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है ना, एवरीथिंग यू लर्न। सो इफ एट ऑल यू वांट टू डिसॉल्व प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। अगर समझो ये 5 पार्टनर्स है, अगर एक दिन सोचते हैं कि हम लोगों को आगे चल के उसको इतने साल के बाद डिसॉल्व, अगर या कभी चल के आगे चल के डिसॉल्व करना पड़ा, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, हम लोगों ने क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। कोई भी पार्टनरशिप अगर करते हो और बिजनेस कर रहे हो, लोगों का कर्जा देना है, तो ऐसे ही बंद नहीं कर सकते, पहले लोगों का कर्जा भरना पड़ता है आप लोगों को, उसके बाद ही आप लोग निकल के जा सकते हैं। तो उसके लिए भी प्रोसीजर क्या है, एवरीथिंग शुड कम देयर। एंड द लास्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट। तो जब आप बिजनेस कर रहे हो तो उसका हिसाब किताब भी रखना है, और उसका चेकिंग भी होना चाहिए, ऑडिटिंग भी होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर, ये सब कुछ इस टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखना है। एंड मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। अगर समझो आगे चल के आप में आपस में 4-5 लोग जो भी पार्टनर्स है, कोई आप में मतभेद होता है, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सब कुछ इस एग्रीमेंट में, इस डीड में आना चाहिए। ये जो 10-12 पॉइंट्स जो है, 1-2-10-12 पॉइंट्स जो है, ये सारे पॉइंट्स इस एग्रीमेंट में लिखित में आना जरूरी है। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, नाउ आई थिंक ऑलमोस्ट, हाँ। सो हेलो, समझ में आया क्या? हाँ, जब तुम बिजनेस कर रहे हो, 5 लोग मिलके आके, अरे चलो एक टेबल पर पैसा रखा, चलो कल से बिजनेस करेंगे, ऐसे कभी होता है क्या?
नहीं, एवरीथिंग रिटर्न भी होना चाहिए, क्योंकि पैसा डाल रहे हो और 5 लोग आज अच्छे हैं, कल को आगे चल के 6 महीने के बाद आपस में नहीं बन रही है तो प्रॉब्लम हो सकता है। फिर एक दूसरे के साथ क्या बेसिस पर झगड़ा करोगे, किस बेसिस पर न्याय मिलेगा तुमको? तो इसके लिए सब कुछ ऐसे रिटर्न एग्रीमेंट होना है, पार्टनरशिप डीड, उसमें ये सारे चीज होना, तब जाके आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होता। समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, अभी हमने बोला ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड बनाया। अभी इस डीड जो बनता है ना, ये इसको कायदेशीर रजिस्टर करना या नहीं करना, ये भी होता है। कोई कोई रजिस्टर नहीं करता। रजिस्टर में कायदेशीर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके वहां पर स्टैम्प पेपर पर लिख के फोटो निकाल के रजिस्टर करते हैं। समझ में? घर खरीदने के बाद घर खरीदी का रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं? Yes, ma'am. गाड़ी खरीदने के बाद गाड़ी की Yes, रजिस्ट्रेशन होती है ma'am. कि नहीं? या क्या पैसा दिया, गाड़ी इतना ले लिया, Yes, बिना ma'am. पेपर के घूम रहे, तो उसमें भी होता है कि जब ये पार्टनरशिप आप बन रहे हो, कर रहे हो, तो उसमें रजिस्ट्रेशन भी होता है। अगर रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन से फायदा क्या है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपको क्या नुकसान है, ये बातें मैं कल के क्लास में बताऊंगी। और आगे नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इज इट क्लियर? आई थिंक ऑलमोस्ट इट इज शोइंग कोबैक्स मीटिंग कमिंग टू एन एंड लगता है। वो 30-40 मिनट्स का सेट करते हैं, 35-36 मिनट हो गया। ठीक है, now we understood what is partnership, what are the features of partnership, what are the merits of Yes, ma'am. partnership, what are the demerits of partnership. We understood what are ma'am. the different types of partners, है ना? Active The partner, demerits of partnership. active partner, then but sleeping partner or dormant partner, Yes, ma'am. then secret partner, then nominal partner, then partner by estoppel, partner by holding. So these are the different types of partners you studied. Then you understood what is the different types of partnership. So partnership is classified on the basis of duration, and partnership is classified on the basis of liability. So on the basis of duration, one is partnership at will and particular partnership. Second, on the basis of liability, one is general And partnership particular and partnership. limited Partnership partnership. and limited partnership. Partnership and Yes. limited partnership. Yeah. So this is what we understood in different types of partnership. Then we came Yes, to what is partnership deed. Deed means where you have to make an agreement. Whatever you are coming together to do business, so there has to be some written agreement wherein all these details, Yes, 10-12 ma'am. points, what all I told, everything should be written, so that in future you will not have any type of problem. Now, when you have made this agreement, whether this agreement should be registered or not, it is up to you. आपकी मर्जी। Yes, ma'am. अगर आपको रजिस्टर करने से अगर कोई फायदा मिलता है, उससे बेनिफिट्स है, तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। कई कई लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते। रजिस्ट्रेशन करने जाओ तो रजिस्ट्रेशन ma'am. के फीस भी बनते हैं, उतना फीस भरना पड़ता है, ऐसे वैसे। Yes, तो ma'am. कई लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते। तो रजिस्ट्रेशन Yes, नहीं करने ma'am. से आप लोगों को क्या नुकसान होता है या क्या क्या बेनिफिट्स नहीं मिलते, उसको हमको पढ़ना है। ठीक है, so Yes, ma'am. registration, so we all know registration of a partnership means entering the firm's name. क्या है? फर्म का नाम, गवर्नमेंट